Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCipher Labs LLP at support@coinswitch.co. And we are live. Hi guys, how are you all? Welcome back to another weekly crypto live with Parth Chaturvedi. I see some 10-15 folks here. Hey Darshit, hey Malik Bhai, hey Sansaran. Hi, hi everyone. How are you, Parth? All good, all good. Just uh, short week था ये. मैंने optional holiday लिया था Tuesday को. So short week but big on क्या कहते हैं news from the crypto world as usual. Correct. Nice. Hey Saurabh. Saurabh says hi to you, Parth. Hi Saurabh. Great. Guys, we'll just begin in a couple more minutes. We'll wait for a few more folks to join in. In the meanwhile, I'll just let you know हम ये क्या करते हैं. Every week on Friday, we do a crypto wrap up कि इस हफ्ते पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ है crypto markets में. Even in the whole blockchain ecosystem, anything that is worth highlighting that our users should be aware of, we try and cover all of those topics in a short 15 to 20 minute का time frame. So if you want somewhere कि आपको पूरा हफ्ते का एक wrap up मिल जाए एक जगह में, आप हमारे YouTube चैनल को आके एवरी फ्राइडे 3 PM को चेकआउट कर सकते हो. एक लाइव सेशन हम आपके लिए करेंगे. Great. People from community, our Telegram community, anyone present here? Nitesh says hi repeatedly. Hi Nitesh. Sansaran, yes. Telegram community को तो actively सुनना चाहिए क्योंकि वो लोग वैसे भी news काफी follow करते हैं. Correct. Channel itself. Sure. I think we have waited for a couple minutes. A lot of folks have already joined in. So, Parth, let's start with the major news of Bitcoin touching almost $35,000, not being able to break above, but still very huge news. And let's start with covering what all went down that led to Bitcoin touching $35,000. So first of all, like it was a great week for crypto in general. अगर आप देखेंगे broader markets, almost 200 billion market cap add हुआ है in the last 1.5 weeks. And again, BTC is leading the charge. BTC के ही तरफ से सारा का सारा pull action आ रहा है. And primary reason again we saw something similar happen 2 weeks back. Dress rehearsals ही चल रही है कि ये दूसरी dress rehearsal थी कि कब वो spot Bitcoin ETF जो है approve होगा. Again, like I've been saying this time and again हर channel पे जब भी हम लोग जा रहे हैं तो यही बता रहे हैं कि this is a monumental change in how Bitcoin will be treated as an asset class. होता क्या है, institutional investors अलग अलग अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट्स रखते हैं और जनरली कोई एसेट का एक्सपोजर लेने के लिए दे यूज अ पैसिव इंस्ट्रूमेंट लाइक एन ETF जिसमें उन्हें खुद ज्यादा कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. एक ETF में इन्वेस्ट कर दो, कुछ उन्हें होल्ड भी नहीं करना खुद. यहाँ आपका जो भी फंड मैनेजर है वो उस ETF को मैनेज करेगा और आप बस प्राइस एक्शन पे आपको बेनिफिट होगा. सो जैसे ही ब्लैक रॉक का स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूव होता है तो इट्स द बिगेस्ट एसेट मैनेजर इन द वर्ल्ड. सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशंस को वो हेल्प करते हैं टू मैनेज देयर फंड्स. सो वो उन सबको मार्केट करना शुरू कर देंगे कि अरे आपका पोर्टफोलियो का 1% 2% क्रिप्टो में भी होना चाहिए और बिटकॉइन इज द लीडिंग क्रिप्टो फॉर दैट. Use our ETF. So once that starts happening, a wall of money is going to come in. And जब भी और unlike futures ETF जिसमें आपको कोई spot purchase नहीं करना होता है, for a spot ETF आपको Bitcoin hold करना पड़ेगा. तो BlackRock को Bitcoin खरीदना पड़ेगा तभी वो उसके ऊपर ETF बना सकता है. So जैसे जैसे ETF की डिमांड बढ़ेगी उनको और ज्यादा spot Bitcoin खरीदना पड़ेगा. इसकी वजह से प्राइस पे धमाकेदार एक्शन जो है आपको देखने को मिला. ये दो ऐसे रूमर्स पे ही गॉड कैंडल्स बन गई. एक घंटे में $3,000 प्राइस बढ़ रहा था. सो लास्ट वीक हुआ ये कि DTCC करके एक क्लियरिंग हाउस है नैस्डैक का, उसके पेज पे आना शुरू हो गया इसका टिकर ब्लैक रॉक स्पॉट ETF का जिसका नाम है आई शेयर्स उनका वो है. तो IBTC करके टिकर है. तो वो दिखने लगा लोगों ने बोला अब तो अप्रूव होने वाला है. एंड अचानक से स्पॉट पे बाय प्रेशर, क्रेजी बाय पे, मतलब ऐसे लिक्विड जो शॉर्ट पोजीशन पे थे वो लिक्विडेट होते चले गए और नए यूजर अचानक से बाय करते चले गए. प्राइस विद इन एन आवर इट वाज अप बाय $3,000 or so. So basically it is
इट इज ओनली अ ड्रेस रिहर्सल कि जब वो एक्चुअल अप्रूव होगा तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस टाइप का प्राइस एक्शन लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड वी आर आई कैन गिव यू अ टाइमलाइन आल्सो कि कब होने वाला है. सो Jan 24th टुवर्ड्स द एंड ऑफ जैन इज द फाइनल डेट. जो पहला जिन्होंने अप्लाई किया था, आर्क करके कंपनी है, आर्क इन्वेस्ट, Ark Invest. उनके उनका ईटीएफ का फाइनल डेट है जो एसईसी को बताना है कि हाँ या ना. अगर वो हाँ करने वाले हैं तो वो सबको एक साथ हाँ करेंगे. दे विल नॉट डू कि आर्क को पहले कर दिया, फिर ब्लैक रॉक को करेंगे, फिर फिडेलिटी को करेंगे. और ये मैं नाम ले रहा हूँ, लाइक ये सब ट्रैडफाई के जाइंट्स हैं. फिडेलिटी, Exactly. फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, इन्वेस्को, ये सब Hmm. के सब ने फाइल किया हुआ है ईटीएफ. तो सबको एक साथ अप्रूवल मिलेगा. एंड अचानक से बहुत ज्यादा स्पॉट परचेजेस पे बाय साइड बहुत प्रेशर आएगा, तो प्राइसेस बढ़ने के चांसेस उतने ही Super. पॉजिटिव है. Super. I also read that there are some 10 like listings in front of the SEC right now. यस, 10 तो Bitcoin ETF listings. हाँ. स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ लिस्टिंग्स Spot हैं, तो Bitcoin उनको वो ETF. सारे के सारे साथ में ही अप्रूव करने पड़ेंगे. यूनिक Hmm. चीज एक और मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम लास्ट वीक. काफी सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो और एसेट क्लासेस में इन्वेस्टेड भी हैं, एंड होना ही चाहिए, लाइक इक्विटी Hmm. वगैरह. तो उन्होंने देखा होगा कि उनके इक्विटी पोर्टफोलियो जो है वो रेड में है. लाइक पिछले पूरे Hmm. हफ्ते में इंडियन Correct. इक्विटी ले लीजिए, चाहे आप यूएस इक्विटी ले लीजिए, सब जगह Hmm. बहुत ही ज्यादा खून खराबा आपको दिखेगा अपने पोर्टफोलियोज में. Absolutely. But Bitcoin and crypto stands apart. Like, this is the true decoupling that everybody's been talking about. कि कब crypto not as a risk on asset trade Hmm. करेगा. तो ये उसका sort of like एक dress rehearsal उसकी भी है कि Bitcoin was in the green and the broader crypto markets, while everything else was in red last week. So again, it becomes a great tool for portfolio diversification. अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट्स चाहता हूँ, तो मैं चाहता Hmm. हूँ कि वो अनकोरिलेटेड हो. एक ऊपर जाए Correct. या एक नीचे जाए तो दूसरा उसके साथ साथ भी नीचे ना जाए प्राइस में. Absolutely. There was also a lot of chatter that I was reading on Twitter that both of these markets, the equity and the crypto markets, are inversely proportional or something like that. But there is not enough data to back that. So अभी जो पैंडेमिक के बाद से there was a very strong correlation between high हाँ. growth tech stocks and crypto. Hmm. तो हाई ग्रोथ टेक को लोग जनरली सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट मानते हैं, तो उसके Hmm. साथ साथ क्रिप्टो ट्रेड करता था कि जब वो ऊपर जा रहा था तो क्रिप्टो भी ऊपर जा रहा था. Hmm. बट ये जो डाउनटर्न हुआ है, उसमें इनिशियल डाउनटर्न में तो दोनों सिमिलरली ट्राई किया था. बट अभी जो हो रहा है, जो यूएस में बॉन्ड मार्केट्स में प्रॉब्लम चल रहा है, फिर Hmm. जियोपॉलिटिकल टेंशंस ये इजराइल पैलेस्टाइन के बढ़ गए, उसके बाद से का जो ये पिछले 2-3 हफ्ते का पीरियड है, उसमें आप देखिए तो इक्विटी काफी नीचे गया है और क्या कहते हैं, Hmm. क्रिप्टो ऊपर ही गया है. ये भी नहीं कि स्टे लेवल पे, इट इज मूव्ड हायर. Correct. Hopefully it'll go more higher. And yeah, but I don't think so. That was it that went down last week. A lot of alts were also going a little ballistic, for a lack of better words. And we noticed that some partnerships were also going down. So let's start with what is happening in the altcoin market and then moving on to what were the biggest partnerships that went down. सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज कि अभी भी ऑल्ट सीजन नहीं आया है. जो लोग बोलते हैं Hmm. ऑल्ट सीजन की ऑल्ट कॉइन्स एकदम बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करके भागने लगते हैं. बिटकॉइन मार्केट कैप डोमिनेंस इज एट अ 30-month हाई. तो दैट इज लाइक अबव 50% राइट नाउ. तो 50% ऑफ क्रिप्टो मार्केट कैप अभी केवल बिटकॉइन में है. ये नंबर हाई तब होता है जब जनरली लोग रिस्क कैपिटल इज स्कैर्ड टू पुट इट इन ऑल्ट कॉइन्स एंड दे वांट टू प्लेस इट इन द सेफेस्ट क्रिप्टो व्हिच इज बीटीसी. सो BTC. जब भी आप लाइक बेयर मार्केट देखेंगे या पीपल आर रिस्क ऑफ, तो वो अपने ऑल्ट कॉइन से पैसे हटा के बीटीसी ईथ में ट्रांसफर करते हैं. Correct. जब बुल सीजन आता है, जब लोग और रिस्की बेट लेना शुरू करते हैं, तब वो अपने बीटीसी से ऑल्ट कॉइन्स में डालते हैं. Having said that, last week was again that वो लाइक एंटिसिपेशन फेज होता है कि अब नया बुल मार्केट शुरू होने वाला है. वैसी चीज हमें कल देखने को मिली लास्ट वीक, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म्ड मच मच बेटर देन बिटकॉइन. Correct. So you would see, I think Bitcoin was up almost like 15% on the week. There were several altcoins which were up more than 30%. Some of them were even up like 50%. And towards Correct. the end, I think we'll touch on meme coins also. Some of them were up 100%. तो like एक Absolutely. हफ्ते में like काफी like अलग अलग पॉकेट्स ऑफ द मार्केट में अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स देखने को मिले थे.
typically like the ones that I think are worth highlighting in the larger token set, like जो large cap tokens हैं, जो बड़े known names हैं, established names हैं. Solana is one, Chainlink is another, and probably Matic. These three tokens outperformed the broader altcoins, the bigger altcoins also. मतलब 20% या उससे ऊपर इनका प्राइस बढ़ा है. Superb. Solana, Now coming on, yeah. I was going to say कि सोलाना और लिंक का तो अभी वो चल रहा है कि उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं वो ब्रेक कर दिए हैं. सोलाना वाज ट्रेडिंग एट 22 like literally 2 weeks back. Now it is at 32. So उसने जब वो मेजर एक बैंड में था 22 24 वाला, वो जब से ब्रेक किया, इट हैज बीन ऑन अ सॉलिड अप मूव. सिमिलरली लिंक को आई थिंक यूजर्स को पहले भी बताया है कि उनका पार्टनरशिप हो गया एक स्विफ्ट के साथ. स्विफ्ट इज ग्लोबली अभी जितना भी पैसा मूव करता है बैंक्स वगैरह के बीच में, वो स्विफ्ट के थ्रू मूव करता है. स्विफ्ट मैसेजिंग सर्विस एक प्रोवाइड करता है आपको कि इस बैंक ने इतना रुपया डेबिट कर दो या वो कर दो. तो चेनलिंक इज एन ऑरेकल सर्विस. वो एनी विच वेज यही करता था कि कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई सर्टेन पैरामीटर्स हिट होने चाहिए. तो पैरामीटर्स कैसे हिट होंगे, ऑरेकल आपको बताएगा. ऑरेकल है चेनलिंक. तो उन्होंने अब कर लिया स्विफ्ट के साथ पार्टनरशिप. सो ये लोग अब ब्रिज टाइप बना रहे हैं बिटवीन ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. सो चेनलिंक का ये नैरेटिव चल रहा है काफी. आई वुड से आप जाके प्राइस एक्शन देख लीजिए पिछले 3 महीने में. इट हैज बीन अप ओनली, एंड लास्ट वीक अगेन उन्होंने रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऑलमोस्ट आई थिंक 40% ऊपर था चेनलिंक का प्राइस. Nice, superb. While we're discussing 40 and 50% surges in prices, guys, Bitcoin is like almost 2x from its lowest low, जो अभी हुआ है पिछले 1 साल में. So around 106% was the highest high that Bitcoin just recently touched in the last week, and that's about Bitcoin being high in a span of a year. But we witnessed कि कुछ meme coins went crazy, went ballistic over the last 3-4 days and went 2x. So, and some of those, I guess, were Pepe and Floki. Yes. So, are we expecting something similar in SHIB also? And what triggered this Pepe and Floki ka bull run? So, again, like meme coins में trade करने से पहले, like not investment advice, but please do your own research. क्योंकि बाकी सारे tokens में बहुत सारे fundamentals है जो आप देख सकते हैं कि कैसे उस project पे कुछ काम चल रहा है, उस पे developers काम कर रहे हैं, उस पे कुछ use case बन रहे हैं. But projects like meme coins जो हैं, Doge हो गया, SHIB हो गया, Floki हो गया, Pepe हो गया, इनका fundamental study करना बहुत ही मुश्किल है. Having said that, शिप पे तो स्पेसिफिकली अब काफी आजकल डेवलपर एक्टिविटी हो रही है. शिबेरियम आने वाला है एक लेयर 2 जो स्केल करेगा, और लाइक शिप के इकोसिस्टम में डीफाई है, एनएफटीज हैं. तो शिप का लाइक लॉन्ग टर्म एक प्लान जो है वो इन प्लेस है. पेपे और फ्लोकी थे लास्ट वीक जो है ना, क्या कहते आपको जो देखने लायक था, वो पेपे और फ्लोकी तो बहुत ही मतलब 100% टाइप बढ़ गए एक हफ्ते में. सो पेपे में ये हुआ था इनफैक्ट कि उन्होंने कुछ टोकन बर्न किए. तो टोकन बर्न को आप समझ सकते हैं एक तरीके से शेयर बायबैक जैसे होता है, वैसे ही अगर टोकन बर्न कर दो तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है. ये इन्होंने बेसिकली जो भी फीस जनरेट हुई उससे आई थिंक 5 या 6 मिलियन कुछ वर्थ ऑफ पेपे बर्न करे टोकन्स, और उसकी वजह से सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस एक्शन एकदम एग्जैजरेट हो गया. सो सप्लाई कम होगी, सेम डिमांड है तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए. तो वैसा कुछ सीन हुआ पेपे के साथ. फ्लोकी में बहुत सारे ट्रिगर्स इंटरनली हैं. फ्लोकी पर भी एक्चुअली डेवलपर एक्टिविटी है, तो फ्लोकी को मैं शिप से कंपेयर करता हूँ दैट सेंस कि वो लोग भी काफी प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन द फ्लोकी इकोसिस्टम. उसकी वजह से प्लस लाइक लास्ट वीक was a general shift in sentiment towards riskier assets within crypto. तो मैंने शुरू में आपको बोला कि BTC तो भागा ही भागा, बट BTC के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स उससे डबल एक्स स्पीड से भागे और मीम कॉइन्स उससे 4x स्पीड से भागे. तो अगेन very bullish sign of start of a new investment cycle or start of new risk capital entering the space, जो कि हमने देखने को मिला. एंड अगर आप ऐसे ही और BTC के अपवर्ड मूव्स में मीम कॉइन्स इसी स्पीड से बढ़े, BTC अगर 10% बढ़ रहा है और मीम कॉइन्स 50% बढ़ रहे हैं, दैट जस्ट गोज टू शो कि रिस्क कैपिटल वापस आ गया है मार्केट्स में.
and any outsized move will be very solid on both sides. Superb. There was also one partnership that came out with Google. If you would like to tell our users about that. सो बेसिकली एक और टोकन था जिसका हमने हाईलाइट भी आई थिंक दिखाया है ऑन इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, इंजेक्टिव, INJ Correct. करके टोकन है. तो इनका लाइक पार्टनरशिप रिलेटेड लाइक न्यूज आया है ऑन विद गूगल, एंड उसकी वजह से प्राइस एक्शन काफी सॉलिड देखने को मिला. एंड ऐसे ही लाइक एक और जो बड़ी न्यूज थी जो आई थिंक हाईलाइट करना लाइक इम्पोर्टेंट है, मैंने शुरू में बोला था, पॉलीगॉन. So Polygon जो है has like a broader plan to move to Polygon 2.0. और Polygon 2.0 में क्या होगा, जितने भी मैटिक होल्डर्स हैं वो मैटिक से शिफ्ट होके they will become पॉल होल्डर्स. एक नया टोकन आएगा पॉल करके. तो वो जो टोकन है पॉल, उसके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैव गॉन लाइव ऑन इथेरियम मेननेट. तो ऑलरेडी पीपल हैव स्टार्टेड ब्रिजिंग, आई थिंक मोस्टली फाउंडेशन और उनके जो डेवलपर्स वगैरह हैं वो लोग अभी कर रहे हैं, अपने मैटिक को इस पोल कॉन्ट्रैक्ट में भेज रहे हैं और उनको उसके बदले में पोल टोकन मिलेगा. तो ये पूरा प्रोसेस लाइक इसका टाइमलाइन अभी कुछ लाइक ऐसा डिफाइंड नहीं है, बट ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स होगा ये. एंड वी विल कीप आवर यूजर्स लाइक ऑब्वियसली वी विल लेट देम नो कि कैसे ये ट्रांजिशन होगा, कैसे आपके मैटिक टोकन्स पॉल टोकन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. पॉल टोकन का खासियत ये होने वाली है कि मैटिक अभी तक जैसे मेन जो मैटिक का वैल्यू प्रॉप था कि वो नेटवर्क को सिक्योर करता था, POS जो प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क है. पॉल टोकन विल एक्चुअली कैप्चर वैल्यू. तो अब पॉलीगॉन जो है एक ब्रॉडर उन्होंने CDK मॉडल बनाया है कि और चेन्स जो है वो पॉलीगॉन पे क्या कहते हैं ट्रांसफर हो सकती हैं. तो वो जो ट्रेन्स जो ट्रांसफर होंगी उनमें जो वैल्यू कैप्चर होगा वो सारा का सारा पॉल टोकन पे आएगा. तो इसलिए इसको काफी लाइक बुलिश लोग देख रहे हैं. एंड प्राइस एक्शन में भी सेम आपने देखा अराउंड 20% भाग गया मैटिक. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ बिग डेवलपमेंट. अभी जैसे इथेरियम वगैरह के रोड मैप में कोई मेजर चेंज आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर में ही है. उससे पहले आई थिंक पॉल क्या वी विल सी अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स इन मैटिक. Superb. So I was actually witnessing a lot of questions around this Paul partnership in community also. So folks from community, I think all your queries have been answered here. Any other questions you have, you might as well post them on community again and we'll answer those. So I am assuming, इसमें बस मैं लोगों को ये बोल रहा हूँ कि लाइक देयर इज नो नीड टू वरी. आपका मतलब मैटिक इज सिक्योर विद अस. एंड बेसिकली क्या होता है, जैसे एयर ड्रॉप्स होते हैं कि कोई पर्टिकुलर टोकन होल्डर को कुछ एयर ड्रॉप मिलते हैं, उससे सिमिलर तरीके से ये मैटिक जो है इट विल सीज टू एग्जिस्ट और वो मैटिक की वजह आपको पोल टोकन मिल जाएगा. एक नया टोकन जो है मिंट होके आपको मिल जाएगा. एंड आई थिंक ऑल ऑफ दिस विल बी डन बाय द एक्सचेंजेस एंड यू डोंट हैव टू, एज अ यूजर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. Nice. All well and good. I also was going through the markets and was noticing that only out of the top 100 coins, actually, there was only one coin that was trading in the negative, and that was BSV. And any reason that if all the market is going up, but BSV was heading down? सो BSV को आप अगर केवल एक हफ्ते में देखेंगे तो आपको डाउन दिखेगा, बट अगर आप चार्ट को एक महीना कर लेंगे तो काफी अप दिखेगा. तो BSV में प्रॉफिट बुकिंग हुई है लास्ट वीक. द प्राइस हैड ऑलरेडी रन अप लाइक ऑलमोस्ट लाइक क्लोज टू 100% इन द मंथ. एंड BSV इज बेसिकली अ फोक ऑफ बिटकॉइन. इट्स कॉल्ड बिटकॉइन सतोशी विजन. वो SV का मतलब ये है. एंड इसकी रैली वैसी चल रही थी जैसे बिटकॉइन पे जैसे रैली करता है, तो बिटकॉइन के सारे फोक्स भी उसके साथ साथ रैली करते हैं, बी इट बिटकॉइन कैश, बी इट BSV. और मतलब बेसिकली इट वाज अ डिराइव्ड रैली. इट वाजंट रियली लाइक कोई BSV के फंडामेंटल से नहीं पुश हो रही थी. बट ओवरऑल लोगों की थीम ये है कि जो प्रूफ ऑफ वर्क टोकन्स हैं, वंस द स्पॉट ETF गेट्स अप्रूव्ड फॉर बिटकॉइन, तो प्रूफ ऑफ वर्क वाले टोकन्स का चांसेस ऑफ गेटिंग ETF अप्रूवल आर हायर. They will be the first to trade on like जैसे एक हमने बताया भी था US में एक एक्सचेंज आया Citadel वगैरह का, उन्होंने भी सबसे पहले BCH, बिटकॉइन, लाइटकॉइन और इथेरियम को ट्रेड करने का मार्केट शुरू करेंगे. बिकॉज दीज आर क्लियर कट कमोडिटीज. लाइक इनका बिटकॉइन के जैसे जैसे डिमार्केशन हुआ है कमोडिटी, ये लोग भी उस डिमार्केशन में आ जाएंगे.
Nice, nice, nice. So for all the viewers out there, we have already started witnessing with some price action the almost similar kind of patterns turning out to be. That is when good news comes out, the interest in that particular coin raises, and institutional investors and even retail investors try to flock there, and hence there is a huge positive price action. So our advice for the viewers watching would be to again do your own research, keep your track of the markets on a regular, like on a constant this thing timeline, ki you are checking what is happening, what's not happening in the market, so that you're up to date, well to well defined to take your trades, and yes, और keep coming in. ज्यादा Yeah, ज्यादा कुछ नहीं, आपको बस वीकली आके ये देख लेना है न्यू correct, चैनल पे, correct, और correct. आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी हम लोग वीकली एक न्यूज़लेटर भी डालते हैं टू ऑल आवर यूजर्स, उस पे भी आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। 100%. And overall, macro risks are there. Like having like seen a green week after a long time, we must not forget कि geopolitical बहुत ही ज़्यादा risks हैं। Macroeconomic US में तो like हो क्या रहा है, like nobody really knows, क्योंकि bond markets are yields are above 5% for 10-year US Treasury. सेम टाइम पे जीडीपी भी बढ़ रहा है। जीडीपी का कल नंबर आया 4.9, वो भी मतलब लाइक आइडियली अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो जीडीपी शुड स्लो डाउन ताकि Yeah. इन्फ्लेशन इन चेक रहे। बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, जीडीपी भी बढ़ रही है, तो लोग कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन भी हाई है, तो वी आर इन अ वेरी लाइक अनचार्टेड टेरिटरी ऑन द मैक्रो फ्रंट। सो इसलिए जस्ट don't take very big bets, like try to do your own research and time out your investment over the next few months. Correct, correct. Hedge your portfolios. A lot of uncertainties are around. And yes, we have seen a green week, like Parth said, but be ready for anything that can come up in the following days. So again, stay tuned to our weekly crypto live. Fridays ko aate raho 3 baje, and we'll be here serving you the hottest content, whatever has happened in the past week. And yes, thanks a lot, Parth, for joining in. Thank you, viewers, Thank you, for guys. tuning in and listening to this. And we'll catch you next time. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCipher Labs LLP at